Welcome to the social science class. Today's lesson is globe, latitudes and longitudes. This is the second chapter of your geography lesson. Now first we'll take about the globe. Globe, here you can see the picture. See here. Globe is the true model of Earth. Here you can see the 2 points. Here 1 point. This is another point. These are the 2 cardinal points. These are the 2 cardinal points of Earth. This is called North Pole. This is called South Pole. The North Pole is 90-degree latitudes is known as North Pole, and 90-degree south latitude is known as South Pole. You can see here the globe this is the axis tilting way. Globe has the tilting axis. Exactly the earth is also earth का axis also tilting है. Tilted axis means it is not standing in a straight way, right? It is not making 90-degree. 90-degree means like this it could have been, but it is tilting way. This is the tilting way, tilting axis. Here it is making 66.5-degree angle, means 23.5-degree tilting. 23.5-degree tilting it is. Okay, this is about the globe. Now here you can see the next, it is 13 one, globe, the true model of the earth. This is the true model of earth. Earth का the shape of earth is geoid, मतलब spherical type. So this is the true model of earth. Exactly the earth appears like that. Countries, continents and oceans are shown in their correct size and location in the globe. Then it has tilted axis as I shown there. 2 cardinal points we have seen of globe are North Pole, 90-degree north latitude is known as North Pole, and 90-degree south latitude is known as South Pole. Now next we will take parallels of latitudes. Before coming there, let us discuss about what are latitudes and longitudes. Latitudes and longitudes both are imaginary lines. What are their use? Specifically, when we want to go somewhere, we have some points, symbolic points. Suppose you are giving your address. I want to go to your home. You are giving your address. There, I don't know your home where it is location. You will give some specific points which all might have known. तो एग्जैक्टली ऐसे ही लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हमें किसी प्लेस का लोकेशन बताता है अर्थ में. एटलास में देखोगे आपको पीछे दिया जाता है इतने डिग्री लैटिट्यूड्स इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में है. तो टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए प्लेस वी नीड द यूज ऑफ latitudes and longitudes. That you will see how you can use latter part. So first, parallel of latitudes we will see. What are those? Parallel of latitudes, those are, as they are parallels, all are imaginary lines. We cannot draw, these are not being drawn, but they are imaginary lines drawn parallel to equator. Then distance remain equal everywhere between 2 parallel lines. Definitely parallel lines means 2 लाइन्स के बीच में डिस्टेंस कभी कम नहीं होता है या बढ़ता नहीं है. दे नेवर जॉइन एट एनी प्लेस. दैट मीन्स डिस्टेंस रिमेन इक्वल एवरीवेयर.
then they are circular. There the shape is circle. The size decreases towards the pole. Each latitudes का साइज धीरे 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 पोल बोथ द पोल्स को टुवर्ड्स साउथ पोल और नॉर्थ पोल के दिशा में घटता जाता है. देन इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ. व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स व्हिच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज इक्वेटर. It divides the earth into two equal parts. This represents the 0-degree latitude. Northern part to equator is known as north hemisphere and southern part to equator is known as south hemisphere. 0-degree latitude is known as equator. Now let us see here. You can see this is, here it is the equator. You can see slowly you can see the circle जो है small decreasing. This is decreasing, circles decreasing, again decreasing, then one point north pole, exactly the same way it will be in south side, but the distance are equal everywhere. They are equal, same distance these are, and these are all circular. One part we can see, if you can see, they are circular. This is the parallel of latitudes. So this northern part of equator, this is north hemisphere, and other southern part will be south hemisphere. That is parallel of latitudes. Now let us take longitudes. These are also known as meridian of longitudes, we used to say. These are imaginary lines drawn from north pole to south pole. We will see on the picture. When we join the lines, we join the north pole and south pole. Those imaginary lines are known as longitudes. They are semicircles. Unlike latitudes, these longitudes are semicircles. Latitudes are circular. These are semicircles. You may be given a question, differentiate between the parallel of latitudes and the meridians of longitudes. So this is first of all write the definition, then you come, those are circular, but here longitudes are semicircular. Yes, semicircles. Distance between them decreases steadily towards pole until it becomes 0 at the pole. दो longitudes के बीच में distance घटता जाता है towards pole. तो हाईएस्ट कहाँ होगा? द हाईएस्ट डिस्टेंस इज नियर द इक्वेटर. देन 0 degree longitude is known as prime meridian. 0 degree latitude is known as equator. 0 degree longitude is known as prime meridian. 180 degree longitude is known as international date line. इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, बिकॉज इस डेट लाइन से ईस्ट एंड वेस्ट में टाइम का फ़र्क होता है, इवन डेट चेंज हो जाता है. आवर डेट इन ईस्टर्न साइड में, वी आर इन ईस्टर्न साइड, यूएस इज़ इन वेस्टर्न साइड. यूएस का टाइमिंग हमारा टाइमिंग से 1 डे पीछे रहेगा. नाउ इफ इट इज़ 26th ईयर, देयर डेट विल बी 25th. और द लेंथ ऑफ longitudes, each longitudes, they are the same, whereas the size of latitudes decreasing towards pole, उनका लेंथ घटता जाता है latitudes का. longitudes का जो लेंथ है, they are having same length, उनका equal length है, सारे का equal length है. Now we go see the picture. Here it is, you can see here. These are the longitudes joining from north pole. This is the north pole. North pole से south pole को join कर रहा है. These are all longitudes, and this one is the 0 degree. These are all longitudes. This is a prime meridian. Just opposite to it is known as 180 degree. There it little, this is
international date line. That is known as international date line. As here it is a circle है. If we count from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 180 degree here. Again 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 180 degree here. The 180 degree from the eastern side if you go and 180 degree from the western side if you go, this 180 degree longitude is the same one. That is the same. And these longitudes are helpful for the time management. The place wise time changes होता है and this longitudes का इफेक्ट होता है टाइम के ऊपर. एज अच्छा अब देखते हैं these are all semicircle. You can see starts from north hemisphere, north pole and joins the south pole. These are all semicircle. These are all semicircle. And highest distance है यहाँ पे near equator. Then slowly decreasing. Distance between two longitudes decrease होके यहाँ पे 1 point में आ रहा है. These are not parallel lines. ये distance decrease हो रहा है slowly. Both the sides towards the pole. Here also you see. Highest धीरे 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 कम हो रहा है. Distance कम हो रहा है. Then it will be 0 degree. Again 90 degree आ जाएगा. Point it will be coming in 1 point. These are meridians of longitudes. Important parallel of longitude, latitudes and longitudes. Here you can clearly see this is red one, that is this one. This is the equator. This portion is the total. This portion is north hemisphere. This portion is south hemisphere. This is north hemisphere. This is north hemisphere. This is south hemisphere. And this is equator. Here this is prime meridian. This is prime meridian. All. And as circles slow come आके इस equator. Same way as it is. यहाँ पे दोनों एक साथ दिया गया है ताकि it will be easy for you to compare. See, you can see here the distance. Here the distance, here the distance, here the distance slowly दो के बीच में कम होता जा रहा है. नेक्स्ट आएंगे हम. दिस इज द मिडिल वन इज इक्वेटर. दिस लाइन इज इक्वेटर, पूरा सर्कल. दिस इज द लार्जेस्ट सर्कल. दिस इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट इट डिवाइड कर रहा है. एंड अगेन बट दिस इज नॉट द सर्कल. यू सी हियर इट इज, you can see here it is, it starts from here, starts from north pole, join in south pole, join south pole, prime meridian. This is 0 degree. Exactly the opposite, same in the opposite direction. This is semicircle. It is not a circle. Same way opposite direction में आएगा आपको. here it is semicircle. This one is international date line. exactly 0 degree का opposite में, that is international date line. now we'll go heat zones of the earth. there are 3 heat zones of the earth: टोराइड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन. ये हीट जोन्स का मतलब क्या है? सन से जो इंसोलेशन मिलता है, तो टेम्परेचर जो मिल रहा है, वेयर इट इज़ रिसीव मोर, एवरी प्लेस इज नॉट गेटिंग द इंसोलेशन इक्वली. तो अकॉर्डिंगली आपको उसको हीट जोन नाम दिया गया है. टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा मिलेगा या सन
in solar insolation, the place which receive more solar insolation, there will be more heat. Where it will receive the least amount, it will be cold. Accordingly, here it is zones, heat zones are divided into 3 parts. If you can see, the movement of sun remains in between Tropic of Cancer, this is, and Tropic of Capricorn, इसी के बीच में. तो ये है टोराइड जोन. दिस ब्लू कलर है, ये टोराइड जोन है. अमाउंट ऑफ, दिस इज इन बिटवीन इक्वेटर, तो नियर इक्वेटर, in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, the amount of solar insolation, this area receives the highest amount. सबसे ज़्यादा अमाउंट ये एरिया में मिल रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं टोराइड जोन. उष्णकटिबंध सबसे हाईएस्ट अमाउंट होता है, यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है. उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाता है. कभी सन का स्ट्रेट रेस, द डायरेक्ट सन रेस तुम्हारा ये बियॉन्ड दिस नहीं आता है. ट्वाइस इन ए ईयर तुम्हारा सनसाइन आता है, ट्वाइस इन ए ईयर इसी बीच में आता है. सूर्य का सीधा किरणें इसी प्लेस में ट्वाइस, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ सन जून 21 लॉन्गेस्ट डे इस एरिया में होगा. सबसे सूर्य रहेगा यहाँ पे. लोकेशन ऑफ द सन विल बी नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो सपोज दिस इज वन प्लेस, दिस इज वन प्लेस, this is one place. Now when the movement of sun is here, now when it is coming, once passing through it, again when it is going, passing through it. तो साल में June 21 this time here, then September 23 again इक्वेटर में आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 22 10 ये आएगा दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास. सन विल बी इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 22 दिसंबर. द लॉन्गेस्ट नाइट हमारा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में. एज वी आर नॉर्थ हेमिस्फीयर इज डिस्टेंसिंग फ्रॉम द सन. देन अगेन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इक्वेटर 21 मार्च को ऑन द इक्वेटर. अगेन अप्रैल, मई, जून 21 अगेन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. लाइकवाइज मूवमेंट होता है. तो 2 बार जो प्लेस ये टोराइड जोन के बीच में रहता है, वहाँ पे सन का डायरेक्ट रेज ऑफ द सन उसके ऊपर होता है ट्वाइस इन ए ईयर, 2 बार आता है. सो ओवरहेड सन किसी भी प्लेस में, यहाँ के किसी भी कोई भी प्लेस का पीपुल, दे कैन सी द सन ओवरहेड ट्वाइस इन ए ईयर. बट द एनी प्लेस बियॉन्ड दिस, सपोज ए प्लेस ईयर, दे कैन नेवर सी द ओवरहेड सन. कभी भी ओवरहेड सूर्य उनका सर के ऊपर कभी भी नहीं होगा है, क्योंकि सूर्य का मूवमेंट इसी के बीच में ही रहता है, इन बिटवीन दिस, नॉट बियॉन्ड दैट. तो जब सोलर मूवमेंट यहाँ नहीं होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होगा. तो जो सन यहाँ है, थोड़ा गर्मी तो यहाँ पे होगा ही. तो ये 2 एरिया जो है, ना ज़्यादा गर्मी होगा ना ज़्यादा ठंड होगी. तो ये एरिया है टेम्परेट जोन. नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड में है इसलिए उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं. दिस इज़ नॉर्थ टेम्परेट जोन. साउथ में है ये, साउथ हेमिस्फीयर में, इसीलिए उसे कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन. दिस आर. नेक्स्ट आता है फ्रिजिड जोन. ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज आर्कटिक सर्कल. 66.5 डिग्री साउथ इज नोन एज अंटार्कटिक सर्कल. इसी के बीच में एन पोल, हियर इट विल बी साउथ पोल, हियर इट विल बी नॉर्थ पोल. यस. तो दिस प्लेस, ये प्लेस में कभी भी सूर्य का किरणें काफ़ी भी नहीं होगा. एज सोलर मूवमेंट यहाँ रह जाता है, दिस प्लेस रिसीव द लोएस्ट अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन. सो ऑल्सो दिस एरिया. तो ये पूरा बर्फ़ में ढका रहता है ऑलमोस्ट. जब व्हेन द सन इज़ हियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, नॉर्थ पोल में थोड़ा सा बर्फ़ पिघल जाता है,
व्हेन द सन विल बी इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन साउथ साइड का फ्रिजिड जोन का थोड़ा सा साइड वाला बर्फ़ पिघल जाएगा, बट स्टिल देयर बर्फ़ में ढके रहते हैं ऑलमोस्ट द पार्ट। आर्कटिक सी बर्फ़ में ढका रहता है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, कम्प्लीटली अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट साउथ पोल से घिरा हुआ है, तो ये पूरा बर्फ़ में ढका रहता है। सो यू मे गेट द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ विथ ए डायग्राम। अब डायग्राम तो बनाओगे, साइड में ईच हीट जोन का एक्सप्लेन करोगे कहाँ से कहाँ तक है। जैसे आपको टोराइड जोन है, इट लाइज इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट रिसीव्स द हाइस्ट अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन। तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे द क्लाइमेट जो है वार्म क्लाइमेट रहता है या टेम्परेचर हाई रहता है। तो ऐसे करके ये टोराइड जोन जाएगा। फिर टेम्परेट जोन का एक्सप्लेन करोगे, देन फ्रिजिड जोन का कौन सा एरिया कहाँ तक है। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन। 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ, दैट मीन्स in between tropic of Cancer to Arctic Circle, and in south side in between tropic of Capricorn to Antarctic Circle. These areas are known as temperate zone. Again, Arctic Circle to the cover up till the pole, North Pole, Antarctic Circle till South Pole. पूरा whole area is known as frigid zone. And frigid zone मतलब lowest temperature, least temperatures, it is covered with snow. ये करके आपको एक्सप्लेन करना है हीट जोन का। नेक्स्ट आएगा लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। अर्थ को स्पेरिकल है, हम यहाँ पे जो दिखाया गया मैप है ये अर्थ का है, लेकिन इसको काटा हुआ है, मतलब फ्लैट सरफेस में दिखा रहे हैं। 3 डायमेंशनल मैप शेप को हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल में दिखा रहे हैं। तो पोल में जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, ये थोड़ा सा लंबा हो गया। फिर भी दिखाने के लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इज बीइंग डन। ये लॉन्गिट्यूड्स का दिए गए हैं एक एक लाइन। हियर यू कैन सी दिस इज ग्रीनविच, दिस पर्सन स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी। दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स है, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। ये है ग्रीनविच में, और दिस इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच में मतलब लंदन का ग्रीनविच में गुजर के जा रहा है, यार दिस इज पासिंग थ्रू ग्रीनविच, ये प्लेस गुजर के जा रहा है। दिस इज सारे टाइम जोन के हिसाब से यहाँ से ही कैलकुलेशन होता है। अगर हम ईच डिग्री में एक एक करके डिग्री में ये करेंगे, तो एक नॉर्थ पोल ऑफ सर्कुलर है, तो हमें हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स विल कम, 360 लॉन्गिट्यूड्स विल कम। ईच डिग्री एक डिग्री में अगर हम खींचेंगे लाइन, तो देयर विल बी 360 लॉन्गिट्यूड्स। अर्थ रोटेट्स, once the rotation of earth completes one rotation in 24 आवर, इसका मतलब 24 घंटा में अर्थ एक राउंड लेता है, वन सर्कल। तो 24 घंटा में 360 डिग्री मूवमेंट होता है। 360 डिग्री in 24 आवर्स अर्थ कवर्स 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना कवर करेगा, 360 डिवाइडेड बाय 24, इट इज़ कमिंग 15 डिग्री। दैट मीन्स 15 डिग्री में डिफरेंस आएंगे आपका एक घंटा। मतलब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में अगर 10 बजा होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में प्राइम मेरिडियन में तब होगा 9 है। अगर 10 मतलब 10 AM होगा, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में होगा 9 AM। ईच 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में देयर विल बी 1 आवर टाइम गैप। मतलब अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्टर्न पार्ट विल कम फर्स्ट। तो पहले ईस्टर्न साइड आएगा, फिर ईस्टर्न, सपोज 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है, फिर 0 डिग्री। तो जैसे भी मूवमेंट होगा ईस्टर्न साइड इज़ कमिंग फर्स्ट। सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है जापान, इसलिए उसे कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, ईस्टर्न कंट्री। जापान का टाइमिंग हमारा टाइमिंग से आगे होगा,
क्योंकि व्हेन द सन इज इन द जापान साइड में सन होगा, जापान विल टुवर्ड्स सन, तब हम थोड़ा सा पीछे रहेंगे। वहाँ पे जब सनराइज होगा इंडिया में, तब सनराइज नहीं होगा, अंधेरा होगा, क्योंकि द अर्थ मूव करता है। तो जापान आया फर्स्ट, वहाँ से वो कैलकुलेशन करके दिया गया है ग्रीनविच टाइमिंग के साथ। तो वेन एवर वी गो या मूव यानी दूसरे कंट्री में जाएंगे, हम उसको टाइमिंग हिसाब करके जाते रहेंगे। यहाँ पे एक है इंटरनेशनल डेडलाइन, सॉरी दिस इज इंटरनेशनल डेडलाइन। ये 80 डिग्री 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, उस साइड से जाएंगे तो 180 डिग्री यही लाइन में आया, वेस्टर्न साइड से आएंगे तो 180 डिग्री इसी लाइन में आया, सेम लाइन दिस इज। तो 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट एक ही लाइन है, एंड दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल डेडलाइन। मतलब 360 डिग्रीज में 1 डे का डिफरेंस हो रहा है। तो हम जब एक सर्कल पूरा यहाँ से लेके स्टार्ट लेके ले लिए हैं, फिर यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो हम कितना सर्कल ले लिए, कितना कवर कर लिए, 360 डिग्री कवर कर लिए हैं। व्हेन यू कवर 360 डिग्री दैट मीन्स 24 आवर्स हो गया। 24 आवर्स मतलब 1 डे डिफरेंस। तो व्हेन वी गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, देयर विल बी, प्लेस यहीं पे है, टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन जब हम क्रॉस करेंगे डे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर 25 होगा तो यहाँ पे 24 होगा, क्योंकि ये दिस इज़ वेस्टर्न साइड है, सॉरी ये ईस्टर्न कंट्रीज, ये यूएस वगैरह इस वेस्टर्न पार्ट में आ रहे हैं। ये 0 डिग्री का ईस्ट में है, ऐसे आया, दिस इज़ कमिंग लाइक दिस। ये 0 डिग्री यहाँ पे है, तो ये ईस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न में आ रहे हैं। तो ईस्टर्न साइड में 24 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा। सो ये प्लेस में अगर होगा डेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर 24 होगा तो यहाँ पे होगा 23। वेन एवर विल क्रॉस करेंगे इंटरनेशनल डेडलाइंस, हम क्रॉस करेंगे ये लाइन को, वी हैव टू चेंज द डेट, इसीलिए उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। कहीं ना कहीं तो एक डेडलाइन देना है कि कहीं से कहीं 24 आवर्स। ये सारे इमेजिनरी लाइंस तो कैलकुलेशन के लिए लिया गया है। क्यों लिया गया ना, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे लैंड मास ज़्यादा नहीं है, तो एक कंट्री में 2 डेट्स करना तो मुश्किल होगा, इसलिए ऐसे लिया गया है। इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लिया गया है, स्ट्रेट नहीं है। क्यों ना, इसमें अगर स्ट्रेट ले जाएंगे तो एक कंट्री का बीच में जाएगा। तो ये ओशन है पैसिफिक ओशन, तो इसके अंदर अगर ले जाएंगे किसी कंट्री का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न व्हेन दे आर मेड इमेजिनरी लाइन्स जब ड्रॉ किए हैं, उसको ध्यान में रख के ऐसे ही किए हैं। बोल सकते हो यहाँ कर सकते थे, सर्कल में कहीं से हम 0 पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं तो 0 पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा 180 डिग्री, तो कहीं पे भी कर सकते थे। ये जानबूझ के इसे किया गया ताकि ज़्यादा हम्पर ना हो, किसी एक कंट्री के बीच में ना जाए, और थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्री के बीच में जा सकता था, तो इसमें थोड़ा टेढ़ा कर लिए ओशन के लेके। तो वहाँ पे जब कंट्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे, सेम कंट्री में अलग अलग रहेगा डेट, सेम डेट रहेगा, डेट डिफर नहीं करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये इंटरनेशनल डेडलाइन को थोड़ा इसमें टेढ़ा किया गया है। तो ये गया टाइमिंग के हिसाब से। अब आते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे यू कैन सी। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे, ये एक अरुणाचल प्रदेश का ये ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न मोस्ट साइड है, ये वेस्टर्न मोस्ट साइड है। तो नियर अबाउट यहाँ पे 30 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस कर रहा है। ये 97 आप हायर क्लास में पढ़ोगे पर एग्जैक्टली अब उतना जानो। अगर ये 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में है, इंडिया इज़ कम्प्लीटली कमिंग इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 97 ईस्ट है तो ये होगा 67, अप्रोक्सीमेटली 67 ईस्ट। तो नियर अबाउट 29 एग्जैक्टली वो 29 डिग्री आता है। तो चलो हम हिसाब लेते हैं 30 डिग्री, कैलकुलेशन आसान होगा। तो ऑलमोस्ट आपको 30 डिग्री का डिफरेंस है। जब व्हेन अर्थ इज़ मूविंग, इस मूवमेंट में व्हेन
अरुणाचल प्रदेश का दिस पार्ट विल कम टुवर्ड्स द सन, तब यहाँ पे अंधेरा रहा होगा, इस पार्ट में देयर विल बी नाइट। ये सनराइज हो रहा है तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 6 o'clock हो रहा है तो यहाँ पे 4 o'clock होगा। 2 घंटा का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 15 डिग्री में 1 आवर डिफरेंस, तो 30 डिग्री में कितना होगा, 2 घंटा का। तो ईस्टर्न मोस्ट प्लेस से वेस्टर्न मोस्ट प्लेस में आपको 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। अगर आप कभी इफ़ यू एवर बीन टू गुजरात और मुंबई, यू विल सी वेस्टर्न साइड में यू विल फाइंड द सनराइज थोड़ा घड़ी के हिसाब से सनसेट लेट में हो रहा है, सनराइज लेट में हो रहा है। वी इन ओडिशा वी आर हियर, तो हमारा यहाँ पे हियर वी आर, तो हमारा सनराइज थोड़ा सा एडवांस होता है, सनसेट भी एडवांस हो जाता है, बिकॉज वी आर इन द ईस्ट। अरुणाचल, उसका नाम दिया गया अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब सूर्य, सूर्य का पहली किरण इन इंडिया का पहला वाला यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो वी आर हैविंग 30 लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इंडिया, सो वी शुड हैव 30 डिफरेंट टाइमिंग जोन व्हेन द सन इज हियर। उसके पीछे पीछे हाँ, ईच 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 डिग्री होगा डिफरेंस। अगर 15 डिग्री में डिफरेंस हो रहा है 1 घंटा का, मतलब 60 मिनट्स, तो 1 डिग्री में 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाई 15, 4 मिनट्स। तो 1 डिग्री में 4 मिनट्स का डिफरेंस हो रहा है। तो 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब आपको 30 लॉन्गिट्यूड्स पासिंग हो रहा है, मतलब 2 घंटा का डिफरेंस होगा। यहाँ पे जब सनराइज होगा, इसके 2 घंटा के बाद यहाँ सनराइज होगा, गुजरात का एक्सट्रीम पार्ट में यहाँ सनराइज होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ऐसे करके धीरे धीरे लास्ट में ये होगा। जो यहाँ पे सनसेट हो जाएगा, यहाँ पे सनराइज, फिर भी सन, यू कैन सी द सन हियर। तो करें तो क्या करें, इन वन कंट्री इफ देयर विल बी 30 टाइमिंग जोन या 30 टाइम्स होंगे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब ट्रेन छूटेगी, टाइम आपका टाइमिंग अलग होगा, मेरे घड़ी का टाइमिंग अलग होगा, यहाँ के लोगों का टाइम घड़ी अलग होगा, यहाँ के लोगों का टाइमिंग का घड़ी अलग होगा, यहाँ के लोगों का अलग होगा। इज इट पॉसिबल? ये सारे कन्फ्यूज क्रिएट करेगा। टू एवॉइड दैट कन्फ्यूज क्या करते हैं ना, वी कैन टेक वन स्टैंडर्ड टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम लेंगे सारे होल कंट्री के लिए। तो किसका टाइमिंग लेंगे? अगर हम ईस्टर्न साइड लॉन्गिट्यूड का लेंगे टाइमिंग तो ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, वेस्टर्न साइड का लेंगे ज़्यादा डिफरेंस होंगे, तो बीच में क्यों ना एक लिया जाए। जैसे अभी हम जो टाइमिंग होगा, अब सुबह 6 बजे कोई देखेगा सूर्य का पोजीशन और कहोगे आप अभी नाइट 7 o'clock, आप राजी होगे? नहीं होगे ना। तो लोकेशन ऑफ द सन देख के भी एक अंदाज लगा सकते हैं हम टाइमिंग। तो वो हाफ एन आवर 1 आवर इधर उधर हो सकता है, बट ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट सी 12 o'clock नून को आप कभी नहीं कहोगे 4 o'clock 4 आफ्टरनून। कोई पूछता है बिना घड़ी देख के कितना टाइम होगा, तो जो बिना घड़ी देख के टाइमिंग कहेंगे तो उसको कहेंगे लोकल टाइम बाय सीइंग द पोजीशन ऑफ द सन। तो हम घड़ी सेट करेंगे, घड़ी सेट करने के लिए लोकल टाइमिंग तो अलग अलग हो सकता है। अगर तो क्या करें, किसका टाइमिंग लें ना। यहाँ पे क्या किया गया ना, एक बीच वाला टाइमिंग लेंगे। किसको ले सकते हैं ना, इंडिया का ये मेरिडियन, ये 80 डिग्री है, हाँ 80 डिग्री, एक मिनट, इसमें 80 डिग्री और 84 उसके बीच में है 82 एंड 30 मिनट्स। ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसी मेरिडियन के ऊपर जब सनराइज होगा, सन होगा 12 बजे का, तो वी विल सेट द वॉच एवरीवेयर इन फॉर इंडिया। इस लॉन्गिट्यूड में, इस लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम होल इंडिया का टाइमिंग फिक्स किया गया है। जब यहाँ पे ओवरहेड सन होगा, घड़ी फिक्स होगा 12 o'clock। अकॉर्डिंगली सारे, चाहे हमारे ओवरहेड में सन हो या ना हो,
तो चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, मेनली ईस्ट वेस्ट में डिफरेंस हो सकता है। सेम लॉन्गिट्यूड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एट ए टाइम सारे वन लॉन्गिट्यूड्स में सनसाइन सनराइज एट ए टाइम आता है, उसका टाइमिंग जोन टाइम सेट तो हम ले सकते हैं, इसी का ही लिए हैं, इसको कहते हैं। तो दिस मेरिडियन इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन मीन्स द मेरिडियन whose local time is set as the time of a country। तो इंडिया का 82 and 30 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट्स या 82 हाफ 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखना जरूरी है, क्योंकि बोथ द साइड ईस्ट एंड वेस्ट होता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड is the standard meridian of India, because the time of local time of this longitude is considered as the time of India। इंडिया का हर जगह में घड़ी में इसी टाइमिंग के हिसाब से सेट होता है। तभी आपको ट्रेन से लेकर एग्ज़ाम से लेकर एवरी कंडक्ट को भी, कोई भी काम का ऑफिशियल वर्क सारे आप टाइम के हिसाब से चलता है। चाहे लोकल टाइमिंग में, जैसे हमारा उड़ीसा साइड में थोड़ा सनसेट पता चलता है कि अरे जल्दी हो गया सनसेट, सनराइज जल्दी हो रहा है। गुजरात साइड में थोड़ा सनसेट घड़ी के हिसाब से जल्दी आगे पीछे होता है, लेकिन ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आएगा ही आएगा, उसको ओवरलुक करके ये किया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या यू कैन राइट 82 and half डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इट इज़ कंसिडर्ड। तो अभी हम देखें क्या कि लॉन्गिट्यूड्स का टाइम के हिसाब से टाइम डिफरेंसेस होता है, और सारे वर्ल्ड का टाइमिंग जानने के लिए टाइम जोन बनाया जाता है। प्लस माइनस आप एटलास में देखोगे प्लस माइनस रहता है। तो ग्रीनविच से प्लस मतलब जैसे इंडियन टाइमिंग है 5.5 प्लस, मतलब ग्रीनविच टाइमिंग मतलब लंदन का टाइमिंग, ग्रीनविच लंदन का पास में गुजर के जा रहा है, लंदन टाइमिंग से हमारा टाइमिंग 5.5 आवर एडवांस है, बिकॉज वी आर इन द ईस्ट। अगर अभी हमारा टाइमिंग 5:30 PM है, तो लंदन का टाइमिंग कितना होगा? 12 नून होगा, क्योंकि हमारे 5.5 घंटा एडवांस रहेगा। माइनस में लिखा गया टाइमिंग आप देखोगे एटलास में, तो माइनस मतलब ग्रीनविच टाइमिंग से पीछे आएगा। अगर ग्रीनविच में 12 नून है, तो जहाँ पे -2 लिखा गया है उस प्लेस का टाइमिंग रहेगा 10 AM 10 AM 10, 11, 12, 10 AM होगा। ऐसे ही टाइमिंग कैलकुलेशन होता है। तो जब हम कोई कंट्री का मैच देखेंगे या कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे कौन सा टाइमिंग है, कौन ये है, दैट योर टाइम जोन के हिसाब से वी कंसीडर एंड वी सी। सो ये हेल्प करता है आपको। लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से टाइमिंग सेट होता है, प्लस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से प्लेसमेंट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों मिला के एक लोकेशन ऑफ द प्लेस को हम जान सकते हैं। लॉन्गिट्यूड्स टाइम से टाइम पता चलता है लॉन्गिट्यूड से, और लैटिट्यूड से क्लाइमेटिक कंडीशंस पता चलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर longitudes and latitudes। Then thank you all।